हेलो एवरीवन, वेलकम। लुक, इन द प्रीवियस लेक्चर जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर किए थे इस चैप्टर से, उसमें हमने पढ़ा था प्री मॉडर्न वर्ल्ड ट्रेड के बारे में कि हाउ ट्रेड इज यूज टू टेक प्लेस इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिल्क रूट क्या था, हाउ द सिल्क रूट फैसिलिटेट द ट्रेड इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। And after that we had go with one more topic, that is food travel and spaghetti, how the food from the various continents travel to the rest of the continents. For example, something the from America how travel to the rest of the world, we will discuss at there. Okay. Especially for the spaghetti, potato, and the noodles we have discussed there. And in this lecture we are going to deal with the your subtopic, that is conquest, disease and trade. And in your board examination, your board will evaluate up to this topic, that is conquest, disease and trade, from this chapter only. Because in the your सिलेबस स्ट्रक्चर एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइन में सीबीएसई बोर्ड ने क्लियरली कहा है कि फ्रॉम दिस चैप्टर दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट अप टू द टॉपिक कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, एंड रेस्ट द it will be the responsibility of your teacher to complete it or not, or to evaluate in the internal examination or projects work. Okay, so let's begin with the pre-modern world, conquest, disease and trade. होता क्या है कि जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड रहता है वो ग्रेटली श्रैंक हो जाता है। श्रैंक मीन्स टू कॉन्ट्रैक्टेड, मीन्स जो वर्ल्ड के बीच में दूरियां रहती हैं वो कम हो जाती हैं। बिकॉज क्यों ऐसे हो जाती हैं? बिकॉज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू एशिया। क्या होता है कि जो यूरोपियन सेलर्स होते हैं, दे डिस्कवर्ड अ सी रूट, अ रूट फ्रॉम द सी टू एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट के लिए वो ये जो समुद्र होते हैं उसके उसमें उन्होंने एक रूट ढूंढ लिया था। एंड दिस रूट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉसिंग ऑफ द आइडियाज, ट्रेड, ट्रेडिशन, कस्टम्स, नॉलेज to the rest of the world, to the Europe from the Asia. Okay, and for this Indian Ocean plays a very important role, because if someone have to just travel to India, uh, or from Europe to India, they have to cross the water of Indian Ocean. So from Indian Ocean is known for a very long time a bustling trade route to the Asia and the Europe, or to the east, to the west. Okay, before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. But from the 16th century, its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. होता क्या है कि जो अमेरिका होता है उसकी डिस्कवरी से पहले आपको पता है कि समवन बिट नोन एज क्रिस्टोफर कोलंबस हैड डिस्कवर्ड द अमेरिका। वो भारत की खोज में निकला था एंड एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड द अमेरिका, एंड एट दैट टाइम ही नेम द वेस्ट इंडीज। अमेरिकन कॉन्टिनेंट को उसने वेस्ट इंडीज कहा था, ठीक ना। समथिंग टाइप ऑफ इंडिया विच इज लाई इन द वेस्ट। ओके, सो अमेरिका की डिस्कवरी से पहले जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट था वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफी लंबे समय तक कटा था। बट आफ्टर द डिस्कवरी इट फैसिलिटेट्स द वर्ल्ड with their abundant crops, minerals, and transform the lives everywhere on this earth. Okay, precious metals, especially the silver and the minerals from the mines located in Peru and Mexico, also enhance Europe's wealth, and this is greatly responsible for enhancing or increasing the wealth of the Europeans. Okay, after the discovery of the America, जो वहाँ पर abundant crops थी या food materials था, they used to supply from they used to supply to the rest of the world, especially the Europe. यूरोप में वहां से सप्लाई आने लगी, जो वहां के मिनरल्स होते थे वो सब। एंड होता क्या है कि इसकी वजह से यूरोप की वेल्थ में इंक्रीज होता है, एंड दिस वेल इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ यूरोप फाइनेंस इट्स ट्रेड विथ एशिया। और जब उनकी वेल्थ में इंक्रीज होता है तो वो अपना ट्रेड एशिया के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेजेंड स्प्रेड इन द 17th century Europe about South America's fabled wealth. Many expeditions set off the search of El Dorado, the fabled city of the gold. If you heard of the dialogue in one of the your film, that is the KGF,
एल डोराडो ऑफ द इंडिया। सो समथिंग होता क्या है कि इन द 17th सेंचुरी एक लोक प्रचलन या लोक कथाओं में बात चलती है कि अमेरिका में सोने का एक शहर है जिसको एल डोराडो कहते हैं, एंड मैनी पीपल स्टार्टेड इन एक्सकवेशन इन सर्च ऑफ दिस फेबल सिटी ऑफ द गोल्ड विच इज टर्म्ड एज द एल डोराडो। And so America being such rich in mineral and crops, is facilitates largely to the and contribute largely to the wealth of the Europe. The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century. European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not conventional military weapon at all. It was the germs such as smallpox. Okay, होता क्या है कि लोग, चूंकि अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो लोग थे, अमेरिका काफी टाइम तक जो है वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कटा हुआ था, मींस दे डिड नॉट हैव एनी कांटेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। So, being cutted from such a large time, they did not have immune to any foreign diseases or any germs। क्यों? क्योंकि इससे पहले उनका वास्ता इन डिजीजेस से या इन जर्म्स से पास्ट में कभी हुआ नहीं था। बट जब कॉन्क्विस्ट स्टार्ट हुई ना, जब कोई भी नया कॉन्टिनेंट या देश खोजा जाता था, तो जो यूरोपियंस होते थे उनके बीच में ही होड़ मच जाती थी कि हु विल रूल देम। तो वैसे ही पुर्तगीज एंड स्पेनिश जो लोग थे, दे बिगैन कॉन्क्वेस्ट फॉर जस्ट टू रूल द अमेरिका। एंड इन दैट होता क्या है कि जो स्पेनिश आर्मी होती है उसके जो लोग होते हैं वो अपने साथ कॉन्क्वेस्ट करने के लिए सिर्फ वेपन्स नहीं लेके जाते हैं, बट they did not used to fire on the American people, but with them they carry the germs of smallpox. Since the American did not have any immune in their body against these germs, it proves to be deadly killer in the American continent, and it takes a larger life in there. It kills and decimated whole communities, paving the way for conquest. And the local inhabitants of the America got killed by this disease after spreading in the continent. And this disease spread in the America makes the conquest easier for the Europeans, and especially the Spanish people. Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not diseases such as smallpox, to which conquerors were mostly immune. Look, होता क्या है ना कि अगर आप फिल्म वगैरह देखते होंगे तो जो होता है विलन वो हीरो की तरफ गन दिखाता है, हीरो उसको झटके से छीन लेता है, छीनने के बाद दोबारा वो विलन की तरफ से। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात कही गई कि जो गन्स हैं इट कुड बी इजिली कैप्चर्ड बाय द पीपल देयर। ओके, बट व्हाट अबाउट समथिंग जिसके बारे में उनको पता ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक वर्ल्ड से कटे हुए थे, तो उनको कोई भी आइडिया नहीं थी स्मॉल पॉक्स के जम्स के बारे में या डिजीज के बारे में। एंड इट प्रूव्स टू बी वेरी डेडली फॉर देम। मेनी लाइव्स वर टेकन बाय दिस स्प्रेड ऑफ द स्मॉल पॉक्स डिजीज। अगर आपको स्मॉल पॉक्स नहीं पता है, तो अगर आप गांव और गांव के इलाकों से आते होंगे, तो अगर जो स्किन्स में छोटे छोटे रेडिस चीजें आ जाती हैं, जिसको गांव में कहते हैं कि माता जी आई हुई हैं, ये बेसिकली स्मॉल पॉक्स एक डिजीज होती है इन द मेडिकल टर्म। एंड अंटिल द 19th century, poverty and hunger were the common in Europe. Cities were crowded, the deadly diseases were widespread, religious conflicts were common, and religious dissenters were persecuted. Thousands of therefore fled Europe from America. Here by the 18th century, plantation work by slaves captured in America after growing cotton and sugar for European markets. होता क्या है कि इन द 19th सेंचुरी जो कंडीशन होती है यूरोप कॉन्टिनेंट की, वो काफ़ी हैवॉइक होती है। वहाँ पर हंगर फैल जाता है, भुखमरी फैल जाती है,
वो डेडली डिजीजेस स्प्रेड्स हो जाती हैं, लोगों के बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, मतलब धर्म के आधार पर लोग लड़ने लगते हैं, एंड जो रिलीजियस डिसेंटर्स होते हैं उनको प्रोसिक्यूट करने लगते हैं। तो लोग क्या होता है कि अमेरिका जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसको छोड़ के दूसरे कॉन्टिनेंट्स, बहुत से लोग अमेरिका की तरफ मूव कर जाते हैं, भाग के वहाँ सेटल्ड हो जाते हैं। बहुत से लोग अफ्रीका में चले जाते हैं, अफ्रीका में जो लोग जाते हैं तो वहाँ पर प्लांटेशन का काम करते हैं, वहाँ पर कॉटन और शुगर उगाते हैं यूरोपियन मार्केट के लिए। अंटिल वेल्ड इन द 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर द वर्ल्ड्स richest countries, they were also pre-eminent in Asian trade। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक जो चाइना और भारत थे वह माने जाते थे कि विश्व की सबसे अमीर देशों में उनका नाम था। 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। And they were also very eminent in the Asian trade। they were the centers of the trade from Asia। बट होता क्या है कि 15th सेंचुरी में जो चाइना होता है वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, अपने आप को काट लेता है ओवरसीज कॉन्टेक्ट से, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट गेट इनटू द इंसोलेशन। एंड बीइंग इंडिया ओनली, दे द ट्रेड शिफ्ट हो जाता है। वो कहाँ पर हो जाता है? यूरोप में। एंड वर्ल्ड ट्रेड का जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड होता है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है? यूरोप। नाउ यूरोप इज इमर्ज एज द सेंटर फॉर वर्ल्ड ट्रेड। हियर इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट वी मीन देन वी से दैट वर्ल्ड रैंक इन द 50s। इसका मतलब यही है कि द डिस्टेंस बिटवीन or the gap between the world reduced due to the discovery of the sea route। the world feel contracted, and not only they contracted but they trade with each other, but they not trade of the goods and services, but the knowledge भी spread होती है। फिर जो कस्टम्स होते हैं, रिलीजन्स होते हैं वो भी बाहर जाते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, विद देम द पीपल आल्सो कैरी द फूड, फूड आल्सो ट्रेवल फ्रॉम देम। एंड नॉट ओनली द फूड, the diseases and the germs were also traveled with them। And when we say that the world is shrank in the 50s, we mean that the world is the contact between the world got reduced। मतलब जो डिस्टेंस होती है वर्ल्ड के बीच में वो कम हो जाती है, एंड द कॉन्टेक्ट जो कांटेक्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो इंक्रीज हो जाता है। लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो नॉलेज होता है उनका, जो रिलीजन होता है, जो कस्टम्स होते हैं वो भी स्प्रेड होना इस्तेमाल हो जाते हैं। नॉट ओनली दिस, द फूड मटेरियल आल्सो स्टार्टेड स्प्रेडिंग। नॉट ओनली द फूड मटेरियल बट आल्सो what diseases and germs were also spread with them। okay, so आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। look for your examination point of view, for your board examination point of view, we have finished this chapter because they will evaluate in your examination from these topics only: the pre-modern world trade, the silk route, food travel and spaghetti, and conquest, disease and trade। but we will try to complete this chapter wholly। अगर हमारे पास समय रहेगा तो इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड यू कैन आल्सो सजेस्ट मी इन योर इन कमेंट you want to go with the complete chapter or till these topics that were going to evaluate in your board examination। okay, if you like the video please hit the like button, and subscribe the channel, share the video for just spread of the channel, and it also motivate us to just provide you the good quality content, the content which is oriented for your board examination only। for this is a channel, as channel suggests that it is the board adda, it is the only channel that is that help you to prepare for your board examination, because being in class 10 it's only matter, not being in IIT, not being in any medical colleges, it is the only matter that you get good percentage in your board examination for your further studies। so please, अगर जो लोग अभी भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से अपने आप को माइंडली प्रिपेयर नहीं किए, वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें, बिकॉज कभी भी डेट सीट्स जो है बोर्ड द्वारा आ सकती हैं,
it is basically accepted to be out in the last of the November or starting of the December. सो आप लोग अपने सिलेबस को खत्म करने की कोशिश कीजिए. डोंट रिलाई ऑन योर स्कूल टीचर, बिकॉज उनको क्या है कि वो आराम आराम से पढ़ाते रहते हैं, मजा ले लेके पढ़ाते रहते हैं. जब एग्जाम आता है तो एकदम से वो घींचना सिलेबस को स्टार्ट कर देते हैं, टॉपिक्स उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं. आई एम नॉट किसी की मैं बुराई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होता है. ओके, सो आप लोग प्लीज अपने एग्जामिनेशन को लेके चिंतित रहिए, थोड़ा उस पर भी वर्क करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स वगैरह काफ़ी थे, आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया. फिर उसके बाद विंटर वेकेशन भी होंगे आपके, फिर उसके बाद आपकी प्रिपरेशन लीव हो जाएगी. तो अगर जो लोग अभी भी अपने पढ़ाई के प्रति जो है ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, प्लीज़ वो थोड़ा सा एफर्ट करें. थैंक यू एवरीवन.